we were discussing pressure-based sensors, and for those who missed, actually जिन लोगों की class miss हो गई last time, if any one of them is here, we discussed pressure measuring pressure greater or equal to atmospheric pressure. Just see here, atmospheric pressure, both in solids and liquids. This was a case of liquids. ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया मेजरिंग pressure or which is very low. Less than atmospheric. Yes, which is very low than the atmospheric pressure. And such that we create condition for vacuum. The low pressure is very low, जो बहुत कम होगा, that is simply what we call as vacuum. And हमने एक pressure greater than atmospheric या equal to atmospheric pressure या जो बहुत नजदीक होगा atmospheric pressure के, वो हमने मेजर, वो पढ़ा हमने, देखा हमने कैसे मेजर कर सकते हैं. एक सिंपल सा डिवाइस था which was a barometer, एनोराइड barometer जो हमने पढ़ा. And then the main topic, actually the important one, which is the measurement of vacuum. And this vacuum has its own applications, इसकी अपनी खुद की applications है जो बहुत important है. And one of the examples I gave you. Then after the description of vacuum, vacuum को हमने define किया, इसके units को define किया. We saw that 1 Pascal is 1 mm of, I think, mercury. Yes. And 1 torr is 133.32 pascals. Okay. And 1 Pascal is actually in the thing, it is gram per cubic centimeter unit. Okay. Wait, yeah, it is. No, it is. Sir, हमने लिखा है 1 torr equal to 1 mmHg. Yes, 1 torr is okay, you are right. 1 Pascal is, you can convert it, so I can write it as 1 torr is equal to 1 mm of Hg, you are right. And 1 torr is 133 point as well, 32 point Pascal. So you can have a relation between these two then. And this is gram per cubic meter into mm. This is how they calculate actually unit. So you can, this is the dimensions. So here we will have area from these two, cubic centimeter and this mm. We can convert it into the area. Then you can convert. So 1 Pascal. Yes. Then what are the sensors or the transducers which measure this vacuum? Those are called as gauges. जिनसे हम मेजर कर सकते हैं वैक्यूम को, उनको हम गॉजेस कहते हैं. Gauges are of different types depending upon the range of vacuum which you want to measure. यानी हमें किस रेंज का वैक्यूम मेजर करना है. मैंने आपको पहले भी कहा, it all starts when you go 10 raised power 0 to 10 raised power minus 3 torr and 10 raised power minus 6. These are the broad classifications. These are the broad classifications. ये broad है. बाकी कुछ किताबें ऐसी भी है, कुछ notes ऐसे, कुछ material ऐसे भी है जहाँ पर इसको और ग्रुप्स में डिवाइड किया उन्होंने. उस रेंज को और ब्रेक किया है और कुछ नहीं.
सर और गॉजेस भी है ना, फॉर एग्जांपल स्क्रू गॉज। वो दोज आर फॉर द डायमेंशंस, वो लेंथ मेजर करने के लिए है। इंची प्रेशर गॉज। वैक्यूम गॉज है, इनको बोलते हैं वैक्यूम गॉज एक्चुअली। ओके, so those are the length measurements, dimension measurements. Okay, so those are instruments, actually devices, simple devices. Now what people have done actually, उन्होंने क्या किया, जब आप बहुत सारी नोट्स मटेरियल्स को देखेंगे तो कुछ लोगों ने इस रेंज को और ब्रेक किया है, उन्होंने उसको और डिवाइड किया है कुछ और छोटे छोटे इंटरवल्स में, एंड दे हैव come up with 4-5 different ranges. These are the mainly 3 broad categories, and this we call as a rough vacuum, this is called as high vacuum, this is ultra high vacuum, UHV, it is ultra high. आपकी एप्लीकेबिलिटी, आपको किस तरह का प्योरिटी चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए, जहां पर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि हमारा प्योरेस्ट मटेरियल बनना चाहिए जिसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं आएगी, सो यू कैन गो फॉर दिस हाई टू अल्ट्रा हाई वैक्यूम। अब इन रेंज को देखिए, गॉज को ऐसे ही बनाया गया है, देयर आर डिफरेंट गॉज, बिकॉज जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम गॉज हम यूज करेंगे दैट इज वेरी मच सेंसिटिव, and even a single atom can give you a signal in ultra high vacuum gauge. जो हम गॉज अल्ट्रा हाई वैक्यूम के लिए यूज करेंगे उसमें अगर आपके पास सिंगल एटम या 2 एटम्स या 3 एटम, वो भी आपको सिग्नल देंगे। बट अगर आप यही गॉज रफ वैक्यूम में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी बिकॉज देयर इज a large number of particles, रफ means close to atmosphere, 10⁻�0, that is 1 tar, that is close to atmospheric pressure, and 1 tar is 1 mm of mercury, which is actually atmospheric pressure. For example, अगर आप वहां तक ले जाएंगे उसको, क्योंकि the density of particles is large, the density of particles is very large, और अगर आप ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो में जो गॉज यूज करेंगे जो बहुत सेंसिटिव है, जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसका जो कैलिब्रेशन है it can be damaged at this, because a large number of particles or the density of particles can give a large signal which cannot be tolerated by this gauge, which has a very large, which is very highly sensitive. Okay, it is just like a delicate. For example, जहाँ पर आप टिश्यू पेपर को यूज कर सकते हो वहां पर एक एल्युमिनियम शीट की जरूरत नहीं है हमें, इसी तरह जहाँ पर एल्युमिनियम शीट हम यूज कर सकते हैं वहां टिश्यू पेपर वो वेट नहीं ले सकता। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल है। तो अपनी एप्लीकेबिलिटी और अपने जो हमारे पास जो हमें जरूरत है उस हिसाब से हम गॉज को यूज करते हैं हर एक रीजन में। तो डिफरेंट गॉज आर देयर। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द गॉजेस व्हिच इज यूज्ड इन दीज टू रेंजेस, दैट इज penning gauge. Penning gauge is there, okay, and there is also called as thermomolecular. Thermomolecular gauge here, okay, and then there is this and this. These two you can use ion gauge. It is very sensitive. Ion gauge, okay, that is also used here, and yeah, we can use this. And there is almost, these are also called as ionization gauge. Ionization gauge. And ionization, there is a hot cathode ionization, and cold cathode ionization. सर रिपीट कीजिए, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, ओके, wait. So what I am saying that if you want to measure rough vacuum, you can use a penning gauge या पिरानी gauge आप यूज कर सकते हो जब हम रफ वैक्यूम में जा सकते हैं। These are also called as thermomolecular gauge. यहाँ पर जब आप हाई वैक्यूम में आप आयन गॉज भी यूज कर सकते हो, आप पिरानी गॉज भी यूज कर सकते हो, बट पेनिंग गॉज आप अल्ट्रा हाई वैक्यूम में यूज नहीं कर पाएंगे, and this cathode ionization gauge is not used for the rough vacuum gauge. Ionization gauge is very sensitive and ये हम यूज करते हैं अल्ट्रा हाई वैक्यूम के लिए, या कभी कभी इसको हाई वैक्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं।
बिकॉज ये रेंज जो है यहाँ पर, ये रेंज दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज, ये एक दूसरे के करीब है, नजदीक है ये वैल्यूज। तो हमारे पास पिरानी गॉज है जो हम रफ वैक्यूम के लिए यूज कर सकते हैं या हाई वैक्यूम के लिए, बट पिरानी गॉज को हम फिर अल्ट्रा हाई में यूज नहीं कर पाएंगे। एंड देन फॉर अल्ट्रा हाई देयर इज ए आयोनाइजेशन गॉज, जिसमें हमारे पास हॉट कैथोड का आयोनाइजेशन है, कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन है। वी विल डिस्कस, इनको हम डिस्कस करेंगे 2-3 गॉज को। वन इज पिरानी गॉज, देन वी हैव आयोनाइजेशन गॉज, एंड उसके बाद हम एक और गॉज हमारे पास है दैट इज पैनिंग गॉज, ये हम यूज कर लेंगे। ये 3 हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली। Now the first one is पिरानी गॉज। पिरानी एक्चुअली नाम था जिस बंदे ने ये एक्चुअली डिजाइन की है, जिसने बनाया है इसको। पिरानी गॉज इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मोमोलिकुलर गॉज। रिमेंबर दैट हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मैं गॉज का थोड़ा सा डिजाइन यहाँ बना दूंगा, जस्ट वेट, wait, I have some, I will show you the figure actually. Yes, it is here. No, इसमें नहीं है, leave it, I will draw it by hand. It's not here. The gauge, this gauge has a basic principle. It works on the principle of thermal conductivity. The physical principle यहाँ involve है, that is thermal conductivity. Thermal conductivity principle पे based है, जो जब ये measure करता है pressure को या vacuum को, वो कैसे करता है? We have a glass holder जो connected है यहाँ से किसी system के साथ, then these are the filaments actually. One, there is another filament. Okay, this is this is stainless steel here, this casing, and these two are the tungsten filaments. Okay, और हमें जब वैक्यूम मेजर करना है तो गैस पार्टिकल्स यहाँ इंटर होते हैं, ये चैम्बर के अंदर फिट होती है, इट इज फिटेड विद इन द चैम्बर, तो यहाँ पर गैस पार्टिकल्स आते हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड टू सम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो मेजर करता है थर्मल कंडक्टिविटी को। यहाँ से दो क्यों लगाए हैं, एक वन एक्ट्स एज ए रेफरेंस। तो थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर एक्चुअली। एंड अगर हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी डोंट हैव एनी करंट और व्हेन वी डोंट हीट अप द फिलामेंट, एक फिलामेंट को हम हीट करते हैं, एक को हम रहने देते हैं वैसे के वैसे ही, और यहाँ से पंप चलता है, देयर इज ए पंप, डिफ्यूजन पंप और समथिंग, वैक्यूम पंप एक्चुअली यू कैन से दैट वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप का काम यही है कि ये यहाँ से, क्योंकि ये चैम्बर में है तो पंप नीचे बाहर लगा होता है चैम्बर के, ये वो चैम्बर है, यहाँ पर कहीं चैम्बर होगा, जो ये मान लो आप यहाँ पर चैम्बर है, तो चैम्बर एक तरफ से पंप के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से ये चैम्बर वो है, चैम्बर का मतलब है जहां पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमें काम करना है, जहां पर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें इसमें वैक्यूम चाहिए इस सिस्टम में। यस, आपको ऐसे समझ आएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज योर चैम्बर, जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आपको शायद सैंपल बनाना है, कुछ और रिएक्शन करनी है, कुछ मॉनिटरिंग कर किसी चीज को अब देख रहे हो अंदर क्या हो रहा है इसमें, तो आप चाहते हो कि जो ये पार्टिकल्स यहाँ के हैं वो बाहर आ जाए, तो पंप उनको खींच लेगा।
तो सेम यहाँ से भी बाहर आएंगे पंप के पार्टिकल्स, बिकॉज जब पंप ऑन नहीं है, जब हम पार्टिकल्स को बाहर नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, सेम यहाँ पर भी होगी। okay? तो बिकॉज यहाँ से प्रेशर कम हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है प्रेशर को यहाँ पर, तो पंप यहाँ से इसको खींच रहा है बाहर। देयर इज ए आउटलेट फ्रॉम द पंप, पंप के एक Sir, आउटलेट। repeat. आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है? Yes, sir. ओके, रोक लिया करो, कोई बात नहीं, इट इज ओके, तो बता दिया करो। सो दिस इज आउट। देखो, दिस इज सम टाइप ऑफ चेम्बर, कोई ऐसा चैम्बर है जहां पर आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो, जहां पर हम कोई फैब्रिकेशन प्रोसेस काम कर रहे हैं, जहां पर हम कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं इसके अंदर। एंड इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे विच एक्ट एज ए इम्प्योरिटी। हमारा मेन एम क्या होता है, दैट वी टेक आउट दीज इम्प्योर पार्टिकल्स, या जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा एटॉमिक पार्टिकल्स है या गैस पार्टिकल्स है या आयन्स है इस चैम्बर में, वो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज वो इम्प्योरिटीज हमारे उस सिस्टम पे आएंगी जो हमें बनाना है, जिसको हमें ग्रो करना है। तो उसको ठीक रखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ड्रेन आउट करेंगे, इन पार्टिकल्स को यहाँ से। तो ये गैस पार्टिकल्स आधे यहाँ भी होंगे, इस गाज में भी जाएंगे, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम। और ये ड्रेन होते हैं इस पंप से, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप, जैसे नॉर्मल पानी का पंप होता है, वो क्या करता है, वो पानी एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से बाहर देता है। सेम वैक्यूम पंप भी होता है, ये भी ऐसे ही काम करता है। फर्क इतना है, एक्सट्रैक्ट्स गैस पार्टिकल्स। तो ये गैस पार्टिकल्स जो यहाँ आयन्स होते हैं या वाटर वेपर्स होते हैं या वेपर्स कुछ यहाँ होते हैं या ऑयल वेपर्स कुछ हो गए, तो ये उनको भी बाहर खींचता है। तो बाहर खींचने के लिए यहाँ से खींच जब रहा है, तो ये टेक्स आउट देम, सेंड्स देम आउट टू द ओपन एटमॉस्फेयर, ये बाहर फेंक देता है इनको कहीं, ये इनका आउटलेट है, एग्जॉस्ट। तो ये जब यहाँ से बाहर फेंकता है, तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये गैस पार्टिकल्स, बिकॉज जब ड्रेन करेगा वैक्यूम पंप, तो यहाँ की पार्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी कम होगी। जब पार्टिकल डेंसिटी कम हो, उतने में क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इसको। ये जब आप इसको हीट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, जो गैस पार्टिकल्स अंदर है, वो गैस पार्टिकल्स और ये हीटेड एलिमेंट, देयर विल बी हीट ट्रांसफर। तो एक हीट ट्रांसफर होगा। जब हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस से होगा, कितने प्रोसेसेस है हीट ट्रांसफर के लिए? वन इज conduction, radiation, convection, radiation. Okay, this is when we have solids, this is for gases or liquids, and this is for open air, open atmosphere. Okay, the radiation is passed through the open atmosphere in the electromagnetic, like electromagnetic field. And so यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर गैस पार्टिकल्स हो, so there is a process of, there will be a process of convection will be involved. तो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। नाउ हीट ट्रांसफर जब होगा, तो ये गैस पार्टिकल्स जब होंगे, जितना हम हीट करेंगे इनको, ये गैस पार्टिकल्स उतना यहाँ पर जाएंगे। एंड यहाँ पर जब जाएंगे, देयर विल बी a contact between the gas particles and the tungsten filament. ओके, हम एक फिलामेंट को हीट करते हैं, तो कुछ गैस पार्टिकल्स इसके साथ ऐड हो जाएंगे। जितने ट्रांसफर ऑफ गैस पार्टिकल्स होंगे, उतनी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये कंडक्ट ज्यादा करेगा, गैस पार्टिकल्स वहां ज्यादा है, तो ज्यादा हीट मतलब वो ले लेगा, ट्रांसफर करेगा अपने में से, टंगस्टन फिलामेंट में से, और इसका उतना कम होगा। ओके, जब जितने गैस पार्टिकल्स जब भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो temperature will increase, and when gas particles decrease, the temperature difference will decrease. Temperature difference will decrease because जितने भी gas particles है, वो help करेंगे in the process of convection, thermal conductivity of that filament. और वो thermal conductivity जब हम measure करेंगे, that will define the level of vacuum. उससे हमें एक vacuum का लेवल पता चलेगा। So that happens when we start heating this filament. जब हम इसको heat करेंगे एक particular time interval पे, time instant of time पे, जितना आप हीट करोगे गैस पार्टिकल्स होंगे, तो देयर विल बी प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ये कन्वेक्शन, प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब गैस पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, दे विल डिक्रीज एंड द प्रोसेस दैट थर्मल कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। एक टाइम आ जाएगा जब वहां पर कोई गैस पार्टिकल नहीं होगा, गैस पार्टिकल विल नॉट बी देयर, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर, देन कोई गैस पार्टिकल फिर फिलामेंट की तरफ नहीं जाएगा, सो देयर विल बी नो फर्दर change in the thermal conductivity. At that time, that means there are less number of gas particles. उस वक्त gas particles उसमें नहीं होंगे। This is the simplest procedure कि ये कैसे काम करता है। और जो टेम्परेचर होता है इस फिलामेंट का, फिर वो टेम्परेचर एक्चुअली इसको
करंट देके दिया जाता है. इट इज नॉट हीटेड लाइक इसको हम हीट करते हैं, इसको करंट देते हैं एंड करंट से दैट टेम्परेचर इसका H इक्वल टू आई स्क्वायर जूल थॉमसन हीटिंग. तो हीटिंग से इसका टेम्परेचर हम निकालते हैं, कितने टेम्परेचर हमने इसको दिया है. तो उस वजह उससे फिर हम रेजिस्टेंस से उसका हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर हमने कितना दिया. जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी और सो द टेम्परेचर ऑफ सेंसर विल ड्रॉप. तो सेंसर का जो टेम्परेचर होगा वो ड्रॉप हो जाएगा. एंड इन दिस वे देयर इज ए convection process. At low temperature, there is a small amount of heat is radiated due to the low temperature of the hot wire. तो वहां पर हीट ज्यादा रेडिएट नहीं होगी. ओके, जब हीट रेडिएट नहीं होगी तो गैस पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर नहीं होगी. कंफ्यूजन मागो कुंजे की. सर अब सारा समाप्त कीजिए फिर से प्लीज. अच्छा, सम अप करना है. देखो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर है, वी आर हीटिंग दिस. हीट जब हम देंगे तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट टू द गैस पार्टिकल्स. तो जितना भी ट्रांसफर ऑफ हीट टू द गैस पार्टिकल्स है तो हीट विल बी ट्रांसफर टू द गैस पार्टिकल्स. एंड जो यहाँ पर ये डिफरेंस है दैट डिफरेंस विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस. ये लो टेम्परेचर पे होता है, दिस विल बी हाई टेम्परेचर. चूंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट विल बी ट्रांसफर टू गैस पार्टिकल्स. जितना गैस पार्टिकल्स कम हो जाएंगे हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा. समझ रहे हो. और हीट ट्रांसफर जब कम हो जाएगा टेम्परेचर विल बी लो. यस सर. ओके, जितने गैस पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे there will यस be सर. heat transfer to more gas particles and you will observe a more temperature here in this region here. Okay, Yes, and sir. that will be calculated between the difference between these two, iske aur iske. This act as just a potential difference. A positive electrode एक negative है, you have a difference, you vary the potential. Simple. तो उस तरह से यहाँ पर हम टेम्परेचर वेरी करते हैं. एंड टेम्परेचर ये सॉरी वी हैव अ टेम्परेचर, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स. बिकॉज गैस पार्टिकल्स अब क्या करेंगे, वो एक मीडियम बनते हैं हीट ट्रांसफर के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. दिस इज सिंपलेस्ट वन ऑफ पिरानी गॉज. ये पिरानी गॉज सिंपलेस्ट है. देन देयर इज आयोनाइजेशन गॉज. आयोनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है आयोनाइजेशन गॉज है. आयोनाइज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन सिंपल. तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा बनाने की. यहाँ पर एक फिगर थी मेरे पास, आई डोंट नो वो कहाँ है. Is this? No, ये भी नहीं है. Wait, I'm searching for a figure actually. Leave it. Now, सेम चैम्बर के साथ वैक्यूम ये पंप कनेक्टेड है, एक तरफ से गॉज कनेक्टेड है जो चैम्बर के एक्चुअली जनरली दिस वैक्यूम गॉज आर इनसाइड द चैम्बर. इनको चैम्बर के अंदर ही रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम ताकि वो वहां के जितना हम इसको वैक्यूम गॉज जितना हम इस गॉज को जितना हम इसके क्लोज रखेंगे इस एरिया के क्लोज उतना हमें ज्यादा पता चल जाएगा एक्यूरेट. तो कोशिश यही की जाती है दैट दीज वैक्यूम गॉज आर इंसर्टेड इनसाइड द चैम्बर और वैक्यूम पंप बाहर रखा जाता है दूसरी तरफ से. So for high vacuum or from high to ultra high, so we use ionization gauge. And हम क्या करते हैं इसमें gases को ionize करते हैं with the help of electronic current. जो gases chamber में present होते हैं, जो हम impurity जिनको हम निकालना चाहते हैं, उनको ionize कराया जाता है एक electron current से. और electron current किससे होता है? Cathode से. Cathode क्या है? एक filament है जिसको heat करते हैं. That is why it is called hot cathode ionization. तो there is a tungsten filament. I will draw. मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा फिगर को. दिस इज गिलास असेंबली है, गिलास का बना हुआ है आउटर इसका एरिया. देयर इज ए tungsten filament.
ओके, टंगस्टन फिलामेंट के बाद यहाँ एक और रॉड है, sorry, I will draw it with the help. ये कॉइल की तरह है, दिस, ये एक्चुअली एनोड है, दिस इज एन फिलामेंट, कैथोड फिलामेंट, ओके। एंड इस एनोड के बीच में एक वायर है, ये जो मैंने ऊपर डाली है ना, ये दिस फिगर थोड़ा सा यहाँ तक अच्छे से नहीं बनाया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल, मैं रिड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, लेट मी रिड्रॉ इट। ये एरिया में रिड्रॉ करूंगा समझने के लिए। एक एरिया यहाँ पर ये बाउंड होता है कुछ, ये पूरा एरिया इसमें कवर होता है, ये सब चीजें शील्ड की जाती है बाकी असेंबली से। तो यहाँ से ऐसे बना दूंगा, ठीक है। दिस इज एन एनोड एंड यहाँ पर बीच में से एक वायर है। दिस व्हाट डज दिस वायर डू एक्चुअली, दिस इज आयन कलेक्टिंग, आयन कलेक्टर, सिंपली इट इज आयन कलेक्टिंग वायर। क्योंकि ये वैक्यूम गॉज है, बस दिस सिंपल, ये इतना ही स्ट्रक्चर है इसका, ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। दिस इज कनेक्टेड टू सम ट्यूब, मूविंग ट्यूब हियर। नाउ इसमें गैस पार्टिकल्स है जो आपको निकालने हैं, जो आप चाहते हो कि ये ना रहे वहां पर, तो ये आप निकालना चाहते हो यहाँ से, ओके। एंड इसके लिए क्या करते हैं हम, वी पास एन इलेक्ट्रॉन करंट फ्रॉम दिस थ्रू दिस फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो व्हाट विल इट डू, इट विल आयोनाइज दीज गैस पार्टिकल्स। यहाँ पर जो होगा ये गैस पार्टिकल्स इनको आयोनाइज करता है। आयोनाइज जब किया इन्होंने तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये वायर लगी रहती है जनरली, एंड दिस collects those ions, this collects those ions। so ionized gases है जो करंट वहां पर, क्योंकि आयोनाइज हो गए गैसेस, अब आयन्स वहां क्रिएट हो जाएंगे, तो आयन्स जब क्रिएट हो जाएंगे, दैट व्हाट विल दैट डू, दैट विल बी एक्चुअली गिव ए करंट, क्योंकि उन आयन्स के फ्लो से करंट क्रिएट हो जाएगी। तो जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज करेगी उस स्पेस में जहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है। पॉजिटिव आयन्स, they will move to negatively charged electrode which is placed somewhere here and it collects those electrons, and ion current is measured, ion current is measured then. So there is the number of ions per unit volume, it will be actually equal to number of atoms, if we assume कि हर कोई आयन आयोनाइज हो रहा है जो हमने इलेक्ट्रॉन करंट भेजी है, that means most of the times it happens that almost मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके एटम्स को आयोनाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम से। तो इसका मतलब यह है कि जो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्रिएट हो रहे हैं, जो कलेक्टर पे कलेक्ट हो रहे हैं, जो करंट जनरेट कर रहे हैं, वो हर एक एटम से एक एक आयन आ रहा है। जितने भी गैस एटम्स, गैस पार्टिकल्स उसमें है, तो हर एक गैस पार्टिकल जब एक एक आयन आएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी वहां है, that is equal to number of atoms per unit volume, and in this way जितनी भी करंट वहां होगी, we are assuming that each gas particle जो चेंबर के अंदर है या जो हमारे इस पे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोड पे आ रहा है, that is coming from those ions जो उसमें प्रेजेंट है। जितने जितने इलेक्ट्रॉन ये गैस पार्टिकल्स जो चेंबर में या जो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि विद टाइम हम पंप ऑन किए हुए हैं तो वो बाहर निकलते जाएंगे, और जब वो बाहर निकलते जाएंगे दैट मीन्स आयन्स अब कम रहेंगे, कम आयोनाइजेशन हो जाएगी, कम करंट रहेगी वहां पर, बिकॉज वो बाहर निकाल लेगा उनको, वो नहीं रख रहे हैं वहां पर। पंप का यही काम है, दैट इट ड्रेन्स आउट दोस गैस पार्टिकल्स। जो वो ड्रेन करेगा, ड्रेन करने से ऑफ कोर्स करंट कम हो जाएगी, एंड इन दिस वे वी मेजर दैट करंट, एंड आयन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर मीन्स
density, number density, how much force, because they are randomly moving, so they will exert some force there. तो वो जो ion current है that is directly proportional to pressure of the gas. And इसमें एक एडवर्स इफेक्ट ये है बिकॉज जब आप टंगस्टन फिलामेंट से करंट को पास करोगे, टंगस्टन फिलामेंट से, जैसे आपने ऊपर देखा हमने टंगस्टन को एक करंट दे दी, व्हाट डज इट डू, इट इज हीटेड अप. तो वो यहाँ एक एडवर्स इफेक्ट है, वहां यहाँ हम हीट नहीं चाहते हैं बिकॉज टंगस्टन फिलामेंट की जो लाइफ होती है दैट इज डिक्रीज्ड उस हीट से. द टंगस्टन फिलामेंट इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दैट, life is decreased because of that heat. So that is an adverse effect, heating of tungsten filament. And impurities, जब अगर impurities ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा impurities होंगी, you will not be, वो सब impurities को कभी कभी ionize नहीं कर पाता है, high density जब होगी. तो ये थोड़ा सा इसके drawbacks है. And this is simply called as ओके. जब आप प्रेशर मेजर करना चाहते हो, यू वांट टू मेजर अ प्रेशर एक्चुअली, तो आप जब करंट भेजोगे तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम आप मेजर कर सकते हो. आपका एक फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कहा कि ये हमारा चेंबर है यहाँ, वी वांट टू मेजर इट, वी सेंड एक इलेक्ट्रिक करंट एंड सी द डिफरेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज द प्रेशर. ओके, दैट इज डन. बट जनरली जब वैक्यूम मेजर करते हैं ड्यूरिंग ए प्रोसेस, जब आपको मेजर करना होगा, इफ there is some variation, जब variation change करने लोग measure करना चाहते हैं, they need to take it at different intervals of time and to see what is the value of current with time, what is the value of current with the current through the filament. क्योंकि generally लोग काम करते हैं, they will not put a chamber और उसको एक बार वैक्यूम आया उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर पाते हैं. तो रीजन ये है कि अगर आपने वैक्यूम लिया और उसको फिक्स कर दिया एक जगह पे, जब आपने उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, तो पंप को कंटिन्यू ऑन रखना पड़ता है टू मेंटेन ए कांस्टेंट प्रेशर. एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए पंप को ऑन रखते हैं बिकॉज यू हैव टू क्लोज इन एवरीथिंग, आपको वैक्यूम सील करना पड़ेगा सब कुछ. तो वैक्यूम सील अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, देयर इज सम पार्ट विच इज कमिंग बैक, कुछ पार्ट होता है जो वापस आ जाता है, जो नॉइज क्रिएट करता है या जो एक्सेस में सिग्नल आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली उसको पंप आउट किया जाता है. एंड जब आप बहुत कम प्रेशर पे पहुंच जाते हैं, जब वैक्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, वैक्यूम हाई प्रेशर कम मींस ज्यादा वैक्यूम, जब वैक्यूम बहुत हाई हो जाता है एंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द प्रेशर और इन द वैक्यूम. जब आप हाई में वैक्यूम पे जाओगे और मेजर करते जाओगे बिकॉज बहुत कम पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत कम पार्टिकल्स जब रहते हैं तो आपको जो सिग्नल आती है आपको पता नहीं चलता कितना वेरिएशन हुआ. एंड द टाइम आप उसको बंद करोगे बिकॉज प्रेशर अंदर बहुत कम है, इट इज जस्ट लाइक इट विल सक ऑल द सराउंडिंग्स, क्योंकि ये वापस लेगा. जैसे वैक्यूम पंप घर में जो क्लीनिंग के लिए हम करते हैं, वो क्या करता है, सक करता है. सेम यही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जब आप वैक्यूम क्रिएट करोगे और आप उसको बंद करोगे, व्हाट विल इट ट्राई टू टेक all that what is on the surfaces actually. तो इसलिए क्या करते हैं हम जनरली वैक्यूम पंप को कंटिन्यूअसली ऑन करते हैं and we continuously drain out those particles, we do not let any particle to enter into it. वो एक टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकलिटी के लिए हम करते हैं ताकि हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे वहां पर. इसलिए हम कहते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पंप कंटिन्यू चलता रहता है. There is one that is called cold cathode gauge, that is also एक ionization gauge, उसको penning gauge भी बोलते हैं. ionization gauge एक gauge है, जैसे ये ionization वो भी ionization, this is a hot cathode ionization, वो एक cold cathode है, and that is also called as penning gauge. cold cathode में क्या करता है, ये जो है ये एक filament है, filament आप heat current generate करोगे, it will be heated, thermionic emission से electrons create करेगा, that is one point. तो एक filament से, जिसमें आपने देखा इसके ड्रॉबैक्स क्या है. बट कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर पॉइंट सोर्स लेते हैं, तो कॉपर पॉइंट सोर्स को लेते हैं, दिस इज एमिशन फ्रॉम ए पॉइंट कैथोड, दिस इज एमिशन फ्रॉम पॉइंट. हम फिलामेंट नहीं लेते, एक सोर्स लेते हैं, सिंपल सा सोर्स, एमिशन फ्रॉम ए पॉइंट, एंड इट अवॉइड्स एक्चुअली कैथोड डैमेज. तो इससे कैथोड का जो डैमेज होगा